Hello everyone, this is Nidhi Baglikar, Assistant Professor, Biyani Girls College, Jaipur. On behalf of Guru KPO, I welcome you all. Today, we are going to discuss about the types of agreements and contracts on the basis of legality. Okay? On the basis of legality, we are going to divide the various types of agreements and contracts. There are basically 6 types of agreements and contracts on the basis of legality. Very first is valid agreement. Valid agreement is also known as a contract. Any agreement which is possessing all the essential elements of a valid contract will be considered as a valid agreement. यानी हर वो agreement जिसमें एक valid contract के जितने essentials हैं वो अगर सारे present हैं तो हम उस valid agreement को क्या बोलेंगे? Contract. So any agreement which is enforceable by law will become a contract. So the very first is valid agreement, that is the contract. Second one is void agreement. Void agreement is known as void ab initio. Void agreement is considered as void ab initio. Void ab initio का मतलब है void from the very beginning. मतलब जहाँ से agreement execute होना start हो रहा है तभी से वो agreement क्या बन जाता है? Void. Void का मतलब है nil. It is having no existence. अब void agreement कौन सा agreement होंगे? Any agreement which is not having any of the essential elements of a valid contract will be considered as a void agreement. अगर free consent नहीं है, lawful consideration नहीं है, तो वो agreement starting से ही क्या बन जाएगा? nil बन जाएगा, उसका कोई existence नहीं रहेगा. इसलिए ऐसे agreement को हम बोलेंगे void agreement. ठीक है? तो दो हो गए, एक हो गया valid agreement, दूसरा हो गया void agreement. ये agreement यहाँ पे जो word है agreement है, contract नहीं है. मतलब ये agreement contract की stage तक पहुँच ही नहीं पाता है, right? Legally enforceable हो ही नहीं पाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं void agreement. थर्ड है void contract. ध्यान से सुनो, ये है void agreement, ये है void contract. इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो void contract है ये agreement की स्टेज को तो क्रॉस कर चुका है, राइट? तो void contracts वो contracts होते हैं, all those contracts which are enforceable and which are legal when they are executed. Okay? जब contract में enter हुए तब तो वो contracts कैसे थे? वो valid थे, but later on due to change in law or due to change in some circumstances those contracts become void. For example, A and B के बीच में contract हुआ है and A is going to sell ivory products to B. But later on, due to change in law, ivory products are now prohibited. Ivory products पे ban लगा दिया गया. तो जब execute हुआ A और B के बीच में वो contract, तब वो contract कैसा था? Valid agreement या फिर valid contract था. लेकिन बाद में law में change आने की वजह से वो contract अब वो execute नहीं कर सकते हैं. ठीक है? तो it will be considered as void contract. दूसरा example, suppose India is going to import some goods from another country, say अमेरिका. ठीक है? अब अमेरिका से जब गुड्स इंपोर्ट करना है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? वैलिड था. लेकिन बाद में क्या हुआ? ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ वॉर, दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाता है, तो अब क्या हो जाता है? एनी ट्रांजेक्शन विल बी प्रोहिबिटेड. ठीक है? तो ऐसे टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर हुआ? तो void contract means all those contracts which were valid at the time of entering into them, but later on due to change in law those contracts become void and they are now impossible to be executed. फोर्थ कैटेगरी पे आता है voidable contract. तो मैं void contract के आगे लिख लेती हूँ due to change in law. फोर्थ कैटेगरी है voidable contract. ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भी एग्रीमेंट जो है लीगली एनफोर्सिएबल है. ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट के स्टेज तक पहुंच चुका है. इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि ध्यान रहे कहाँ पर एग्रीमेंट है और कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पढ़ रहे हो आपको क्लिक हो जाना चाहिए दैट एग्रीमेंट हैज पास्ड द स्टेज ऑफ लीगल एनफोर्सिएबिलिटी, क्योंकि हमें पता है एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी मिलकर क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ओके? तो फोर्थ कैटेगरी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है this becomes void at the option of parties. क्या होता है ये? At the option of parties. मतलब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं वो पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट को लेटर ऑन void डिक्लेयर कर सकती हैं. अब इसमें कौन से एग्जांपल्स होंगे?
जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें फ्री कंसेंट ना हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट कोएर्शन से एग्जीक्यूट हुआ हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ हो, मिस्टेक से हुआ हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ हो, तो इन सारे एलिमेंट्स के अंदर फ्री कंसेंट नहीं होती है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, विच एवर कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैविंग, इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट हैविंग फ्री कंसेंट, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन पार्टीज चाहें तो वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं। सो voidable contract is at the option of parties. Void contracts is due to change in law, and voidable contract will be always at the option and willingness of the parties. And when it will become voidable? Whenever there is no free consent. Okay? फिफ्थ पे है इलीगल एग्रीमेंट। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, हमने देखा था कि जो लीगल एनफोर्सिबिलिटी के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स होते हैं, उसमें एक पॉइंट आता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर यहाँ पे अगेन ये वर्ड आ रहा है एग्रीमेंट। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? बिकॉज इट इज लैकिंग लीगल एनफोर्सिबिलिटी। लीगल एनफोर्सिबिलिटी लैक कर रहा है, मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट, एक एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के जो वैलिड एलिमेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? एग्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में लॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट नहीं है, एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, देन सच एन एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल एग्रीमेंट। तो इलीगल ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन। A and B, suppose A and B are two parties and A is contracting with B. A says that I will sell you my car if you murder C. A B को क्या बोल रहा है कि if you murder C then I will sell my car to you. अब यहाँ पे consideration कैसा हो गया? मर्डर का हो गया। क्या मर्डर लीगल है? नो, मर्डर इज इलीगल, राइट? मर्डर इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो यहाँ पे वो एग्रीमेंट ही कैसा बन जाएगा? इलीगल एग्रीमेंट। क्लियर हुआ? एंड लास्ट वन इज अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन यहाँ पे वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिबल का मतलब है व्हेन पर्टिकुलरली एनी कॉन्ट्रैक्ट इज पजेसिंग एनी टेक्निकल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब है कि इफ देयर इज मिसमैच ऑफ सिग्नेचर और द अमाउंट इज नॉट प्रॉपरली इंडिकेटेड और द लैंग्वेज इज वेरी कंफ्यूजिंग, लैंग्वेज इज वेरी वेग। ओके, तो एनी अगर टेक्निकल डेफिशिएंसी है अगर कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर इम्प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी है, ठीक है, इम्प्रॉपर लैक ऑफ स्टैम्प ड्यूटी या फिर मिसमैच ऑफ सिग्नेचर्स और द लैंग्वेज इज वेरी वेग एंड कंफ्यूजिंग, तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर अनएनफोर्सिबिलिटी। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर टेक्निकल डिफेक्ट। तो अगर टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, व्हेन द टेक्निकल डेफिशिएंसी विल बी रिमूव्ड, ऑटोमेटिकली दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? तो ये 6 कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का लीगल स्टेटस डिसाइड करती है। पहला हुआ वैलिड एग्रीमेंट, जिसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। सेकंड इज वॉइड एग्रीमेंट, विच इज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जहां से आपका एग्रीमेंट स्टार्ट होता है वहीं से ये एग्रीमेंट क्या बन जाता है? वॉइड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक नहीं पहुंच पाता है। थर्ड वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट the contract was valid, but due to some change in law, जैसे मैंने बताया कि टू कंट्रीज के बीच में अगर आउटब्रेक ऑफ वॉर हो जाता है या फिर पर्टिकुलरली समथिंग इज प्रोहिबिटेड, देन एट ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर void contract. Fourth one is voidable contract, which will be void at the option of parties. वो सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें ले सकते हैं जिसमें पार्टीज की फ्री कंसेंट नहीं हो, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसमें आ जाएंगे? voidable कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। फिफ्थ है इलीगल एग्रीमेंट। अगेन यहाँ पे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब बिगिनिंग में ही इसका जो कंसिडरेशन है या फिर ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? इलीगल है। एंड लास्ट वन इज अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, विच इज ड्यू टू एनी टेक्निकल डेफिशिएंसी. So all this was about the types of various agreements and contracts. I hope you understood them. Do share the video, like the video and give your valuable feedback and comments. Thank you so much.